Title of the topic is Multiple Physical LANs. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to understand how physical LANs and multiple physical LANs handle broadcast. तो हम इस टॉपिक में physical LANs और multiple physical LANs को डिस्कस करेंगे in terms of broadcasting. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udam's book Computer Networking First Step. Physical LANs, it's all about broadcasts. Hubs and switches, they behave differently. But जब उन्होंने broadcast करना है, hubs and switches, they behave identically. A broadcast frame is an Ethernet frame जिसके अंदर destination MAC address क्या होता है? FFF.FFF.FFF. तो जब एक broadcast frame generate किया जाता है, तो इसका ये destination MAC address होता है. When a switch receives a broadcast frame, it forwards the frame out on all ports except to the incoming port. जिस पोर्ट से उसने रिसीव किया उसके अलावा बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं उसके ऊपर ये फ्रेम भेज दिया जाता है. जो हब है वो कैसे काम करता है? हब वर्क्स इन द सेम फैशन फॉर ऑल फ्रेम्स इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट हो या ब्रॉडकास्ट फ्रेम ना हो, हब ने ऐसे ही काम करना है. जब भी कोई फ्रेम रिसीव करता है हब, वो सारी पोर्ट्स के ऊपर भिजवा देता है एक्सेप्ट द वन ओवर विच इट हैज रिसीव्ड द फ्रेम. What is the meaning of a broadcast domain? Broadcast domain is a group of devices for which a broadcast frame sent by one device is received by all other devices in the same group. इसको हम broadcast domain कहते हैं. एक group of devices हैं, जब एक broadcast frame generate होगा, भेजा जाएगा, तो सारे devices, जो सारे group of devices हैं, जो receive करते हैं, उसको हम कहते हैं broadcast domain. अब next हम on the next slide we show three different examples of broadcast domains. The first one will be a single hub create a single broadcast domain. A single switch can also create a single broadcast domain, while we can have a hub and a switch connected together and they can also create a single broadcast domain. Now we have shown the three different configurations here. पहली जो diagram है on the left hand side हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक hub है और ये जो hub है इसके अंदर दो कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द हब, E0 पे और E1 के ऊपर, और E2 और E3 के ऊपर दो और कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं. तो जब E0 के साथ जो ब्रॉडकास्ट करेगा, जनरेट करेगा, E2, E3, E1 की पोर्ट्स के साथ जितने भी पीसीज लगे हुए हैं उन तीनों पीसीज को फ्रेम फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. सिमिलरली आपका जो स्विच है उसका बिहेवियर भी यही है. अगर हब और स्विच को इकट्ठा जोड़ दिया जाए लाइक दिस शोन इन दिस डायग्राम, एंड लेट्स से एक पीसी जनरेट करता है, एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम को जनरेट करता है. ये जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम होगा हब उसे रिसीव करेगा. हब क्या करेगा, अपने दूसरी पोर्ट के ऊपर जो पीसी जनरेट कनेक्टेड है उसको भी फॉरवर्ड करेगा और एक और पोर्ट जिसके साथ ये स्विच कनेक्टेड है उसको भी ये फॉरवर्ड करेगा. एज सून एज द स्विच रिसीव्स द ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम द हब, वो क्या करेगा, वो भी उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा. So we can see here these are three different examples of broadcast domains. A LAN consists of the devices inside a single broadcast domain. Let's imagine that you just took up a job as a network engineer at some company with a small network shown next. ये एक छोटी सी कंपनी है, उसका छोटा सा एक physical LAN शो किया गया है. And you, let's say, are the network engineer, you are the in charge. Fred है, Barney है, Wilma है, Betty है. Now let's say Fred generates a broadcast frame. इस broadcast frame के अंदर उसका जो MAC address होगा उसकी वैल्यू होगी all Fs. आपका जो switch है उसको रिसीव करेगा, उसको एग्जामिन करेगा. When it finds that the destination MAC address is all Fs, वो क्या कर देगा, इसको flood कर देगा. Wilma will receive, Betty will receive, Barney will also receive the same copy of the frame. Now let's say your boss tells you we have got to get Fred and Barney on a different LAN than Betty and Wilma. जो Fred और Barney हैं, they are working on a super secret project. और हम क्या करना चाह रहे हैं, Betty और Wilma को एक और अलग LAN के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं. And we meet so that since we cannot meet our security requirements, Betty and Wilma are supposed to be put on a different LAN as compared to Fred and Barney.
What is the solution then? We need multiple physical LANs. Multiple physical LANs अगर create करने हैं, you require multiple switches. So to put Betty and Wilma on a different LAN as compared to the boys, you have to use two different switches. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या जनरेट किया, दो फिजिकल लैंस क्रिएट किए हैं. फ्रेड और बार्नी एक फिजिकल लैन के ऊपर है और इस लैन का नाम है लैन नंबर 1. लैन नंबर 2 के ऊपर क्या है, विल्मा और बेटी, दे आर कनेक्टेड वाया दिस स्विच. और अगर आप देखें इस डायग्राम में तो जो लैन नंबर 1 का स्विच है इसके अंदर दो एंट्रीज हैं क्योंकि इसकी दो पोर्ट्स के साथ पीसीज लगे हुए हैं. एक पोर्ट E0 के साथ पीसी लगा हुआ है और उसकी एक दूसरी पोर्ट जो E1 है उसके साथ भी एक ही पीसी लगा हुआ है. जो लैन नंबर 2 है इसका जो स्विच है इसके अंदर भी दो एंट्रीज हैं. एक विल्मा का जो मैक एड्रेस है और जिस पे विल्मा का कंप्यूटर अटैच्ड है वो है E2. बेटी का मैक एड्रेस और किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, E3. तो हर स्विच अपना अपना एक एड्रेस टेबल मेंटेन कर रहा है और ये फिजिकली दोनों दो डिफरेंट लैन्स हैं. नाउ अगर फ्रेड ने एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया तो जो ओरिजिनेटिंग लैन है वो वहां से ट्रांसमिट नहीं हो सकता लैन नंबर 2 पे. फ्रेड का जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम है वो सिर्फ बार्नी रिसीव करेगा. फ्रेड का जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम है ना तो विल्मा रिसीव करेगी ना बेटी रिसीव करेगी बिकॉज दोज टू लैंस दे डू नॉट हैव एनी केबल बिटवीन देम. जो दोनों स्विचेस हैं उनके दरमियान कोई केबल ही नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन ही नहीं है. तो जो फ्रेड का ब्रॉडकास्ट है वो बार्नी तो रिसीव कर सकता है, विल्मा और बेटी रिसीव नहीं कर सकते. Both broadcast frames and unicast frames from the top LAN cannot be forwarded to the bottom LAN as there is no physical cable connecting the two switches in this case. तो अब इस एग्जांपल में हमने क्या शो किया हुआ है, इट्स a unicast but I do not have 200.33.33 in my table, so the simple solution is flood the frame. तो जो पहला LAN है उसके अंदर फ्रेड ने एक ऐसा मैक एड्रेस जनरेट किया जो उस स्विच के एड्रेस टेबल में मौजूद ही नहीं है. तो ये क्या करेगा स्विच, इस सिंपली बार्नी को वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा. लेकिन अगर आप देखें तो वो जो एड्रेस था वो किसका एड्रेस था, लैन नंबर 2 में विल्मा का वो मैक एड्रेस था 0200.33.333. ये मैक एड्रेस था विल्मा का. तो फ्रेड ने एक ऐसा फ्रेम जनरेट किया जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस विल्मा का था. बट सिंस देयर इज नो केबलिंग इन बिटवीन दीज टू स्विचेस, यूनिकास्टिंग भी पॉसिबल नहीं है. So there are some key points about multiple physical LANs. Each LAN has an independent MAC address table as compared to the other LANs. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मल्टीपल फिजिकल LANs हैं तो हर LAN का एक अपना इंडिपेंडेंट MAC एड्रेस होगा. ब्रॉडकास्ट अगर ओरिजिनेट किया जाता है एक LAN में तो वो फ्लड होगा उसी LAN के ऊपर, वो दूसरे LAN के ऊपर नहीं जाएगा. Similarly, broadcasts originating in one LAN are not forwarded into the other LANs. अगर यूनिकास्ट भी करेगा तो यूनिकास्ट ओरिजिनेटिंग इन वन लैन आर नॉट फॉरवर्डेड इनटू द अदर लैंड्स. इस टॉपिक में हमने मल्टीपल फिजिकल लैंड स्टडी किए. किस पर्सपेक्टिव से, ब्रॉडकास्टिंग के पर्सपेक्टिव से स्टडी किए.